تیل خریدا، اور وفاقی وزیر ایوب کا یہ کہنا کہ وزیر اعظم کی پہلی ترجیح عوام کا فائدہ اور مفاد ہے، اور حکومت کا مقابلہ مافیاز اور ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ ہے۔ آپ کو بتائیں، پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے پر مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم عمران خان سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ لیگی رہنماؤں نے کہا عمران خان ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے گھر چلے جائیں۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں حیران کن اضافہ باعث افسوس ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے حکومت کی ناکامیوں میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں، بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، اگر ضرورت ہے تو عمران خان استعفیٰ دیں، پی ٹی آئی اپنا نیا لیڈر چن لے۔ احسن اقبال نے کہا کہ حکومت نے چور دروازے سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ پیٹرول کی قیمت میں اچانک اضافے سے ملک کی معیشت متاثر ہوگی۔ حکومت جب سے آئی مافیاز کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ کمپنی 15 روپے کا اضافہ مانگ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے پیٹرول کی امپورٹ کو روکا، جب امپورٹ بحال کی تو قیمت بڑھ چکی تھی دنیا میں، ہمیں 15 روپے اضافی چاہیے، تو یہ باقی 15 روپے کا انعام کس کو دیا گیا ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو 10 روپے اضافی لگے ہیں یہ کن اصحاب کو ملے ہیں۔ یہ وہی چینی والا معاملہ ہے، وہی آٹے والا معاملہ ہے، وہی دوائیوں والا معاملہ ہے۔ وہ ملک جہاں 200 روپے کا ایک ٹمرا کا انجیکشن 1.25 لاکھ میں بکا ہو، اس میں حکومت ذمہ دار نہیں ہے۔ تو آج میں پھر کہہ دوں 71 روپے 15 پیسے اس پیٹرول کے لیٹر کی قیمت ہے، یہ حکومت اس کو 71 روپے 15 پیسے پہ لے کر آئے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے پیٹرول بم گرا کر ثابت کیا کہ عوام کو کچھ نہیں سمجھتی۔ شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ عوام کی منتخب کردہ حقیقی قیادت مفاد عامہ میں فیصلے کرتی ہے، جبکہ پیراشوٹ سے اقتدار میں آنے والے عوام کے بجائے مافیاز کے مفادات پورے کرتے ہیں۔ اہم خبر جس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، حکومت پر تنقید کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ حکومت نے پیٹرول بم گرا کر ثابت کیا کہ وہ عوام کو کچھ نہیں سمجھتی۔ شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ عوام کی منتخب کردہ حقیقی قیادت مفاد عامہ میں فیصلے کرتی ہے، جبکہ پیراشوٹ سے اقتدار میں آنے والے عوام کے بجائے مافیاز کے مفادات پورے کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات میں 34% اضافہ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی ہے۔ مافیا نے حکومت پر دباؤ ڈال کر اربوں روپے کا فائدہ اٹھا لیا۔ اب عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کمیشن بنا دیں۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ لوگوں سے پیسے نکلیں گے تو مافیا کی جیبوں میں جائیں گے، معلوم نہیں مافیا حکومت میں ہے یا حکومت مافیا میں ہے۔ جو ہے وہ پوری دنیا بلبلا رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیٹی جو ہے یہ آج جو ہے وہ ہوئی ہے، اور یہ گورنمنٹ کے ساتھ تیل مافیا نے جو ہے وہ مل کے کی ہے۔ اس ایک رات میں کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے کہ جس کو 50 لاکھ سے لے کے 2 کروڑ روپے کی سلامی جو ہے اس گورنمنٹ نے جو ہے وہ نہیں دی۔ اور عام آدمی جو ہے، عام آدمی کی جیب میں یہ ڈکیٹی ہوئی ہے۔ رکشے والا، ٹیکسی والا، ویگن والا، یہ ان لوگوں کی جیبوں سے جو ہے یہ پیسہ چرایا گیا ہے۔ پہلے تیل سستا کر کے اس کو عمر یوسف فرما رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے جو ہے وہ پاس آن کر دیا جو بینیفٹ ہمیں ملا تھا۔ او بھئی اگر پاس آن ہو گیا ہوتا تو ہم آپ کو شاباش دیتے، وہ پاس آن تو ہوا ہی نہیں۔ آپ نے پیٹرول سستا کیا، لوگ رل گئے پورے ملک میں پیٹرول تلاش کرتے کرتے، پیٹرول مل ہی نہیں رہا تھا۔ لوگوں اسی مافیا نے، آئل مافیا نے وہ پیٹرول روک لیا، کسی جگہ پہ پیٹرول نہیں ملا۔ اور اب جب انہوں نے سستا تھا انہوں نے سٹور کر لیا، گورنمنٹ کو بلیک میل کیا، آپ کو بلیک میل کیا، اور اس کے بعد اب انہوں نے راتوں رات جو ہے وہ گورنمنٹ نے یہ قیمتیں بڑھا کے جو ہے اربوں روپے کا ڈاکہ اب عام آدمی جو ہے، موٹر سائیکل والا وہاں پہ جائے گا، ٹیکسی والا وہاں پہ جائے گا، ویگن والا وہاں پہ جائے گا، وہ اس کی جیب سے یہ پیسے نکلیں گے۔
वफाकी वजीर उमर अयूब ने पाकिस्तान में आलमी मार्केट के मुकाबले में पेट्रोल को सस्ता करार दे दिया। कहते हैं उतार चढ़ाव के मुताबिक चलेंगे। वफाकी वजीर ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक तय होती हैं। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में 112% इजाफा हुआ। हुकूमत ने बिजली की तरसीली निज़ाम को तरक्की दी है। इस वक्त तरसीली निज़ाम की सलाहियत 26,000 मेगावाट से ज़ायद है। आपकी पेट्रोल की कीमत इजाफे के बावजूद भी जनवरी के मुकाबले में 17 रुपए फी लीटर कम है और डीजल तकरीबन 26 रुपए फी लीटर जनवरी के इस साल के जनवरी के मुकाबले में कम है। अभी मैं आपको बताता हूं जनाब स्पीकर कि आप ये ओवरऑल या आप बड़े सगीर में या कीमतें देखें तो हिंदुस्तान में इस वक्त या आप पेट्रोल की कीमत लें तो वहां पे पाकिस्तान में तकरीबन 100 रुपए के करीब है। आपका जनाब वाला बांग्लादेश में इस वक्त 174 रुपए के करीब आती है। आपका चाइना में 137 और इंडिया में 180 रुपए लीटर। और फिर बैनुल अक़वामी मंडियों में या बाकी जगहों में साउथ ईस्ट एशिया में भी मैं आपको बता दूं वहां पे जो कीमतें इस वक्त चल रही हैं जनाब स्पीकर, उसका भी आप अंदाजा लगा लें, वो सब के सब पाकिस्तान से ज्यादा हैं। तकरीबन आप अंदाजा लगा लें चीन में मैंने 108। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल पर 47 रुपए, डीजल पर 51 रुपए टैक्स वसूल किए जा रहे हैं। कीमत में 2 रुपए 44 पैसे कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। पेट्रोलियम डिवीजन के जराये के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल पर आवाम से 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी और 14 रुपए 55 पैसे GST वसूल किया जा रहा है। 2 रुपए 44 पैसे कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। 1 लीटर डीजल पर 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी वसूल की जा रही है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत में 14 रुपए 74 पैसे GST और 6 रुपए 20 पैसे कस्टम ड्यूटी शामिल है। LPG मार्केटिंग कंपनीज ने LPG की कीमत में 5 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया। घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हो गया। ओगरा ने कीमत में इजाफे का नोटिस ले लिया। LPG मार्केटिंग कंपनीज ने गैस की कीमत में हफ्ते में दूसरी बार इजाफा कर दिया है। इस इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए इजाफा हुआ। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर का कहना है कि हुकूमत LPG की कीमतों में इजाफे का फौरी नोटिस ले वरना हालात मजीद खराब हो जाएंगे। ओगरा के मुताबिक अथॉरिटी की जानिब से LPG की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। LPG की कीमत 31 मई के नोटिफिकेशन के मुताबिक बरकरार है। मुकर्ररा कीमत से जायद पर LPG गैस बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जमात इस्लामी के साबिक अमीर मुनव्वर हसन की तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में कर दी गई। नमाज जनाजा नमाज ज़ोहर के बाद अदा की गई और उसमें जमात इस्लामी के ओहदेदारान, सियासी और समाजी शख्सियात समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच और मजहबी रहनुमाओं ने TV टुडे से बातचीत करते हुए कहा कि मुनव्वर हसन मोहब्बत करने वाले इंसान थे। उन्होंने जमात इस्लामी के लिए बहुत तारीखी काम किए, उनका खला पूरा न होगा। मुनव्वर हसन दुनिया से रुखसत हो गए हैं। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर सीरू ने मौत का मज़ा चखना है। वो शानदार और कामयाब ज़िंदगी गुजार करके यहाँ से रुखसत हो गए हैं। वो बेशुमार लोगों के मुरब्बी थे, मोहसिन थे। वो के साथ जमात इस्लामी में सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से काम का मौका मिला। वो अल्लाह वाली शख्सियत थे, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते थे। सैयद साहब एक अजीम कौमी और आलमी रहनुमा थे। जब वो अमीर जमात कराची थे, मैं अंजुमन अलवा इस्लाम कराची का नाजिम था। कई इज्तिमात में उनके साथ शिरकत का मौका मिला। उनका आलमी तहरीकात इस्लामी के लिए बड़ा जज्बा था। इस शहर में जब गोली और गाली का रिवाज था, वो एक हक की आवाज़ थे और मुसलसल सारी ज़िंदगी जहद फहम करते रहे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस सानहा के लिए जो है वो अल्फाज नहीं है कि जो हम ये इस सानहे में जो है वो अल्फाज कह सकें, इसलिए कि सैयद मुनव्वर हसन साहब की शख्सियत ऐसी थी कि वो एक कायदाना सलाहियत थी उनके अंदर, और वो ये नहीं थे कि एक इंसान थे, बल्कि वो एक तहरीक थे। और आज हम एक बहुत बड़े इंसान से महरूम हो गए। जिंदगी में उन्होंने अगर कोई काम किया है तो एक काम किया है, दीन के लिए जिद्दोजहद।
इसके अलावा मैंने उन्हें कोई काम करते नहीं देखा। देखिए, अल्लाह सुब्हानो तआला ने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के ख़त्म नबूवत के नतीजे में जो मिशन उम्मत के हवाले किया, उस मिशन की तसलसल में सैयद साहब की बड़ी खिदमत हैं। मैं तो उनके बेटों की उम्र जितना हूँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर वाकिफ़ हूँ कि उनकी रातें अल्लाह के हुजूर रोने गिड़गिड़ाने में गुजरती थीं। बिलाशुबा उन्होंने सैयद अबुल आला मौदूदी मरहूम के मिशन को आगे बढ़ाया। अब उनके वारिसों के कांधों पर है कि वो कोशिश करें कि उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। सैयद मुनव्वर हसन साहब यकीनन बहुत बड़े इंसान थे। वो अपने नाम में एक तहरीक थे, वो महज एक फर्द का नाम नहीं, एक तहरीक का नाम है। और यही वजह है कि आज दुनिया भर की इस्लामी तहरीकें वो इनके गम में। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि निजी स्कूल्स की जानिब से तालीमी इदारे खोलने का बहुत दबाव है। फैसला 2 जुलाई को बैनुस्सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस में करेंगे। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए शफकत महमूद का कहना था कि मुल्क भर में तमाम बच्चों को पास कर दिया गया है और ये फैसला बैनुस्सूबाई कॉन्फ्रेंस का था। उसकी राह में कुछ कानूनी मसाइल कहीं कहीं आ रहे हैं जिनको दूर किया जा रहा है। शफकत महमूद ने बताया कि निजी स्कूलों की तरफ से तालीमी इदारे खोलने का बहुत दबाव है। हमारे लिए बच्चों की सेहत सबसे अव्वलीन है। जो भी फैसला करेंगे बहुत एहतियात से किया जाएगा। निसाबी कुतुब में जहाँ भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा वहाँ खातिमुन नबीयीन लिखा जाएगा। पाकिस्तान ने 29 जून से करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर करतारपुर राहदारी खोलने की तैयारी है। तर्जमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत को करतारपुर राहदारी 29 जून से खोलने पर आमादगी से आगाह कर दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि हम भारत को 29 जून को करतारपुर राहदारी खोलने से मुतालिक अपनी आमादगी से आगाह कर रहे हैं। दुनिया भर में जैसे इबादतगाहें खुल रही हैं, वैसे ही पाकिस्तान को करतारपुर राहदारी खोलने की तैयारी भी करनी चाहिए और तैयारी की जा रही है। कौमी एयरलाइन PIA ने मुश्तबे लाइसेंस के मामले पर फौरी तौर पर 141 पायलट्स को ग्राउंड कर दिया। फहरिस्त में पालपा के सीनियर ओहदेदारान तर्जमान कैप्टन कासिम कादर भी शामिल हैं, जबकि पंजगोर हादसे में जहाज के कप्तान याहिया संधेला का नाम भी दिया गया है। तर्जमान PIA के मुताबिक CEO एयर मार्शल अरशद मलिक ने PIA के पायलट्स को ग्राउंड की जाने की मुतालिक वजारत हवाबाजी को आगाह कर दिया। PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने तमाम सफीरों को खत लिखकर एयरलाइन के इकदाम से आगाह भी किया है। एविएशन फहरिस्तों के मुताबिक PIA सरेन और एयर ब्लू के औसतन 1/3 हवाबाज मुश्तबे लाइसेंस के हामिल हैं। एविएशन डिवीजन की जारी फहरिस्त में मुतादिद गलतियों की मौजूदगी का भी इंकशाफ किया गया है। PIA के 141 की फहरिस्त में 1.5 साल कबल मुअत्तल किए गए 17 हवाबाज भी शामिल हैं। फहरिस्त में ऐसे पायलट्स के नाम भी जो मुस्तनद लाइसेंसेस के हामिल हैं। तमाम तर तफसीलात की दस्तयाबी के बावजूद मुतादिद पायलट्स का पर्सनल नंबर ही मौजूद नहीं। गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी पाकिस्तानी पायलट्स और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। गैर मुल्की एयरलाइंस की जानिब से कार्रवाइयां वजारत हवाबाजी की जारी फहरिस्त को बुनियाद बनाकर की गई हैं। वेट एयरवेज ने 7 पाकिस्तानी पायलट्स और 56 इंजीनियर्स को ग्राउंड कर दिया है। कतर, ओमान एयरवेज और वियतनाम एयर में मौजूद पाकिस्तानी पायलट्स, इंजीनियर्स, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। फहरिस्त में मौजूद नामों को पाकिस्तानी अथॉरिटीज की रिपोर्ट मौसूल होने तक मुबैना तौर पर ग्राउंड रखने का फैसला किया गया है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं राना सनाउल्लाह को लग रहा है कि वजीर आजम ऑफिस में नवाज शरीफ हैं। वजीर आजम इमरान खान एक एक पैसे का हिसाब लेते हैं। वज़ीर आज़म हाउस का अमला कम किया गया, अखराजात में 40% कमी की गई है। कौमी असम्बली में राना सनाउल्लाह की तनकीद के जवाब में शहबाज गिल ने कहा कि राना सनाउल्लाह को लग रहा है कि वज़ीर आज़म ऑफिस में नवाज शरीफ मौजूद हैं, जो कौम का पैसा अंधाधुंध लूट रहे हैं। इमरान खान एक एक पैसे का हिसाब लेते हैं। आपका काम दिन रात झूठ बोलना है और इसके अलावा आपने सीखा ही क्या है। ईमानदारी में आप और आपके आकाओं का इमरान खान से क्या मुकाबला। कहाँ इमरान खान और कहाँ ठगों का मेला। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि बादशाह सलामत वाला दौर नहीं रहा, अब गरीब के पैसों पर अयाशियों का रिवाज नहीं। बैरूनी दौरों पर पोते नवासे समधी और पूरा टब्बर लेकर जाने वालों को कौम भूली नहीं। साबिक हुकूमतों ने सरकारी पैसा बेदरेग उड़ाया और शाहाना अंदाज जिंदगी अपनाए।
करप्ट अनासिर ने जमहूरियत के नाम पर लूटमार की। वजीर आजम इमरान खान ने किफायत शारी की मिसाल कायम की है। गरीब अवाम का दर्द रखने वाले वजीर आजम और जमहूरियत के नाम पर लूटमार करने वालों का वाज़ेह फर्क है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं, खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कम इजाफा हुआ। कोरोना ने दुनिया भर की मईशतों को मुतासर किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज भी हुकूमत के दिफा के लिए सामने आ गए। कहते हैं, खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कम इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा ने दुनिया भर की मईशतों को मुतासिर किया। बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐसा इजाफा नहीं देखा, इसी वजह से कीमतों में नजरसानी करना पड़ी है। शिबली फराज ने कहा कि खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में कम इजाफा हुआ। अवाम की फलाह पहली तरजीह है, उन्हें रिलीफ देने की कोशिश करते रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत में दरख्वास्त मुनीर अहमद एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि काबीना की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए क़वाइद व ज़वाबित को मद्देनज़र नहीं रखा गया। अदालत से इस्तदा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। करारदाद रुकन पंजाब असम्बली राबिया फारूकी ने जमा करवाई। करारदाद के मतन में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा जालिमाना इक़दाम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कोई जवाज नहीं। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं। गुज़िश्ता कई रोज से मुल्क भर में अवाम को पेट्रोल की किल्लत का सामना रहा। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले को वापस लिया जाए। आला अदलिया इस इजाफे के खिलाफ सो मोटो ले और तहकीकाती कमीशन बनाकर हकायक अवाम के सामने लाए जाएं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से स्पीकर सूबाई असम्बली परवेज़ इलाही की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वर्किंग रिलेशन के मामलात पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का मिलकर पंजाब के अवाम की खिदमत के आज़म का इरादा। जी हाँ, अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, ये भी उनका कहना था। उस्मान खान बुज़दार का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ हमारी इत्तेहादी है, साथ लेकर चल रहे हैं। अपोजिशन ने कोरोना समेत हर नाजुक मौके पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। अपोजिशन जमातें मायूसी का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ऐवान की कार्रवाई एहसन अंदाज में चलाने पर स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की पार्लिमानी खिदमत को सराहा। उन्होंने कहा, स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने ऐवान को मतवाज़न अंदाज में चलाकर नई मिसाल कायम की है। परवेज़ इलाही की पार्लिमानी खिदमत काबिल तहसीन है। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने मौजूदा मुश्किल मुआशी हालात में बेहतर और मतवाज़न बजट पेश किया। टैक्स फ्री बजट पेश करने पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और उनकी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। पंजाब को तरक्की की राह पर तेज़ी से गामजन देख रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान खान बुज़दार सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और अब कुछ गर्मी की बात कर लेते हैं। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची के अवाम कर्बनाक अजियत में मुब्तला है। रिहायशी इलाकों और तमाम सनती इलाकों में लोड शेडिंग ने अवाम की नींद बर्बाद कर दी। शहर कायद में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। रिहायशी इलाकों और तमाम सनती इलाकों में 8 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग के बाद फैक्ट्रियों ने रात की शिफ्ट में काम करना बंद कर दिया है। शिफ्ट की बंदिश की वजह से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। के इलेक्ट्रिक ने गैस फर्नेसाइल की कमी का बहाना करके बदतरीन लोड शेडिंग शुरू की है। लोड शेडिंग वाले इलाकों में दौरानिया 20 घंटे तक पहुंच गया। मुस्तस्ना इलाकों में 3 से 6 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को 700 मेगावाट तक इजाफी बिजली फराहम की जा रही है। मौसम में बेहतरी, डिमांड में कमी के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैस और फर्नेस ऑयल की कमी का दावा भी बेबुनियाद निकला। SSGC और PSO के इलेक्ट्रिक को इसकी जरूरत के मुताबिक सप्लाई कर रही हैं। के इलेक्ट्रिक ने रवा माह फर्नेस ऑयल की इजाफी तलब से मुतालिक PSO को ताखीर से आगाह किया। के इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑयल की डिमांड से मुतालिक 30 दिन कबल आगाह करने का पाबंद है। पाकिस्तान में कोरोना से एक ही रोज में 74 अमवात, तादाद 4035 हो गई। 3138 अफराद में वायरस की तशखीस, तादाद 1,98,883 हो गई। 2765 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में
कोरोना से मुतासरा 86,906 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में कोरोना के अब तक 72,880 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध में 76,318, खैबर पख्तूनख्वा में 24,943, बलूचिस्तान में 10,116, इस्लामाबाद में 12,206, आज़ाद कश्मीर में 1,003 और गिलगित बल्तिस्तान में 1,417 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना वायरस के बायस सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहां 1,656 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 1,205, खैबर पख्तूनख्वा में 890, इस्लामाबाद में 120, गिलगित बल्तिस्तान में 23, बलूचिस्तान में 113 और आज़ाद कश्मीर में 28 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मजीद जानेंगे मुजम्मिल रजा की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जिसके लिए इंतजामिया लोगों को समाजी फासले पर रखने और SOPs पर अमल कराने में भरपूर कोशिश कर रही है। इस्लामाबाद में मुतासरा इलाके को सील कर दिया गया है ताकि कोरोना के बढ़ते हुए मरज को रोका जा सके। अपनी जितनी एहतियाती तदबीरें हो सकती हैं करें, ये हमारे लिए बेहतरी है। हुकूमत जो कर रही है वो हमारी बेहतरी के लिए कर रही है और हमें भी चाहिए, अवाम को चाहिए कि इसका साथ दें। अवाम को एहतियात करनी चाहिए, घरों में रहना चाहिए और सैनिटाइजर फेस मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं SOP से अमल करें और लोग भी करें और इसके लिए वो बाकायदा कराएं सबको। ये हमें नहीं है इसमें कि SOP पे अमल करना चाहिए, हमारा अवलीन फर्ज है। हुकूमत ने हमें बताया हुआ है कि ये बीमारी की वजह से बाहर नहीं निकलना है, SOPs पे अमल करना है, अपने बच्चों को बाहर नहीं छोड़ना है। मुसीबत में मुब्तला हैं सारे, तो ये दुआ करो कि अल्लाह हमारे पे रहम करे, हमारे गुनाहों की सजाएं हमें माफ़ करे कि इस बुरान से हमें छुटकारा मिल जाए। इंतजामिया का कहना है रुकावटें खड़ी करने का मकसद आवाम को मूजी मर से बचाना है। अगर आवाम तावन करे तो इस वबा से जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगे। कैमरामैन मुबशर अली के साथ मुजम्मल रजा, TV टुडे, इस्लामाबाद। पंजाब के इलाके सादिकाबाद में टिड्डी दल के हमले में कपास, बागात और चारे की फसलें तबाह हो गईं, जबकि मकामी किसान बर्तन बजाकर टिड्डी दल को भगाने की कोशिश करते रहे। पंजाब के इलाके सादिकाबाद में टिड्डी दल ने एक बार फिर हमला कर दिया, जिसके बायस कपास, बागात और चारे की फसलें तबाह हुई। हमले के बाद मकामी किसान बर्तन बजाकर टिड्डी दल को भगाने की कोशिश भी करते रहे। किसानों ने टिड्डी दल से निपटने के लिए हुकूमत से स्प्रे करने का मुतालबा किया। गुज़िश्ता रोज सिंध के जिला नवाबशाह में टिड्डी दल ने फसलों पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से कई एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासिर हुईं। मकामी किसानों के मुताबिक टिड्डी दल के हमले में कपास, गन्ना, जवार और मकई की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। नवाबशाह में आबादगार टिड्डियों की बोतलें बजाकर भगाते रहे। वहां भी किसानों ने हुकूमत से फौरी स्प्रे करने का मुतालबा किया है। DGPHA तारिक बसरा ने लाहौर में मुख्तलिफ पार्कों का दौरा किया। पार्कों में पानी की टर्बाइनों, मोटरों, वाटर टैंक्स और इंजीनियरिंग के काम का जायजा लिया। DGPHA तारिक अली बसरा ने खजरा मस्जिद पार्क समनाबाद, कश्मीर ब्लॉक पार्क, अल्लामा इकबाल टाउन, उमर ब्लॉक पार्क, अल्लामा इकबाल टाउन का दौरा किया। पार्क्स में पानी की टर्बाइनों, मोटर्स, वाटर टैंक्स और इंजीनियर के काम का जायजा लिया। DGPHA ने पार्क्स में वजू खानों के लिए बनाई जाने वाली जगहों के काम को भी चेक किया और DGPHA तारिक अली बसरा का कहना था कि मौसम गर्मा में पार्क्स को सरसब्ज और शादाब रखने के लिए पानी की तरसील के निज़ाम को मौसर बनाया जाए। खराब टर्बाइनों और मोटरों को हंगामी तौर पर ठीक या तब्दील के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लाहौर सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस M3 के SSP सैयद हशमत कमाल की हिदायत पर शौकत खानम कैंसर एंड रिसर्च हॉस्पिटल के साथ मुश्तरका ब्लड स्क्रीनिंग और डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। तर्जमान मोटरवे पुलिस माजिद रफीक मिनहास का कहना था कि मोटरवे पुलिस ने लोगों की खिदमत से ही अपना मकाम बनाया है। कोरोना से मुतासरा मौजूदा मुल्की हालात में मोटरवे पुलिस अपना किरदार अदा करती रही है और इस कैंप का इनेकाद इसी की एक कड़ी है। अफसरान की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए उनके खून के बुनियादी टेस्ट के नताइज की रोशनी में जरूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। दूसरी जानिब ब्लड डोनेशन का मकसद बीमार मरीजों के लिए ताज़ा और सेहतमंद खून फराहम करके उनकी जान बचाना है। शरफपुर शरीफ में सियासी और समाजी रहनुमाओं ने तहसील इंतजामिया के हमरा शहर भर में शहरियों में मास्क और सैनिटाइजर्स तकसीम किए।
شرکپور شریف میں کورونا سے احتیاطی تدابیر اپنانے کے حوالے سے شہریوں میں آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ صدر انجمن تاجران میں بازار شرکپور ملک انجم جمیل چاند، چیئرمین میاں غلام نبی، نائب صدر شیخ نعمان عارف، سرمد عارف اور دیگر عہدیداروں نے شہریوں میں ماسک اور سینیٹائزرز تقسیم کیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر مظہر علی سرور گجر، ایس ایچ او تھانہ شرکپور رائے سرفراز یوسف، سی ای او میونسپل کمیٹی منشا احسن اور رائے عمر اور تحصیل انتظامیہ کے دیگر اہلکار بھی موجود تھے۔ میرپور خاص پولیس کی بڑی کارروائی، اقدام قتل میں ملوث نامعلوم ملزم 24 گھنٹے میں گرفتار کر لیے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان پولیس کو متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے، جن میں قتل، اقدام قتل، چوری، ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ آر پی او راولپنڈی سہیل تاجک نے ڈی پی او جہلم رانا عمر فاروق کے ہمراہ پولیس تھانہ سہاوا کا دورہ کیا، جہاں انہیں چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ جی ہاں، آر پی او راولپنڈی نے پولیس تھانہ سہاوا کی بلڈنگ میں تعمیراتی کام اور تزئین و آرائش کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وی او آر پی او اور راولپنڈی نے پولیس تھانہ سہاوا کے ملازمین کو بہترین کارکردگی پر نقد انعامات اور سرٹیفکیٹ بھی دیے اور ڈی ایس پی سہاوا کے ہمراہ پولیس تھانہ ڈومیلی کا بھی دورہ کیا۔ بلڈنگ کی تعمیر و مرمت کے ساتھ ساتھ علاقہ میں جرائم کی روک تھام کے لیے تمام ضروری وسائل فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ آر پی او راولپنڈی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ضلع انتظامیہ قصور کی ڈینگی لاروا کے خاتمے کے حوالے سے سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا دان بدر کے ڈینگی ورکرز کی کارکردگی اور انضباط کو چیک کرنے کے لیے تحصیل چونیا کے نواحی علاقوں میں ہنگامی دورے جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا عدنان بدر نے عدم تعاون اور غفلت کا مظاہرہ کرنے پر ڈی ڈی ایچ او چونیا کو بھی شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن ختم ہوا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔